Hello, students, and a very warm welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. And today, students, in this particular video, we are going to have an elaborate discussion with respect to the previous year questions pertaining to ancient India. Now, students, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 साल के क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज बिटवीन 2018 टू 2022. मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ में स्ट्रैटेजी का डिस्कशन किया था कि किस तरह से हमें हिस्ट्री और कल्चर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. उसके तहत स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था दैट स्पेसिफिकली इन द ईयर 2022 यूपीएससी completely changed its strategy with respect to history, wherein this time the focus was more on ancient, medieval, and culture. Keeping that in mind, students, I had totally recommended to you that this time we need to focus on ancient and medieval India as well. So keeping that point in mind, now in this particular video, we are going to discuss some of the most important questions that have come up in ancient India in the last 5 years. So let's begin. Now students, we'll start with the year 2022. हमने क्या करा है कि एंशंट और आर्ट एंड कल्चर ये दोनों वैसे तो एकदम मिक्स होते हैं, इनको सेग्रीगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के जो सवाल हैं उनको अलग करके इसके अंदर लिख लिया है. और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, यानी कि मान लीजिए कोई डांस, पेंटिंग, लिटरेचर, इन सब के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको हम एक अलग वीडियो के अंदर डील करेंगे. यहाँ पे द ओनली क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डील विद विल बी पर्टेनिंग टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री. Keeping that in mind, students, the first question is right in front of your screens, and this is from the year 2022. Now, students, in this particular question, we are given 3 statements, and these 3 statements are a part of Kautilya's Arthashastra, and we need to answer that which among them are correct. Now, students, if you will see, all of these 3 statements are pertaining to slavery. सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि भाई कैसे कोई इंसान स्लेव बनता है और या किस तरह से वो स्लेवरी से छुटकारा पा सकता है, फ्री कैसे हो सकता है. अब स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका लेवल देखते हैं. पहले लेवल की अगर हम बात करें तो दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. मेरी माने तो इस तरह के क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कराने से बेटर है कि जो हम सही करके आए उसके मार्क्स तो हम फेच कर पाए. इस क्वेश्चन को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट स्टूडेंट्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे जो रूटीन सोर्सेज हैं, दैट इज आर.एस. शर्मा हो गई, एनसीईआरटी हो गई, इनके अंदर इस तरह के कंटेंट का डील नहीं किया जाता है और इसके लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. लेकिन बात यह है कि भाई 100 में से 20 क्वेश्चन मान लीजिए हिस्ट्री के आते हैं, उस 20 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया के आएंगे. ऑलरेडी हम आर.एस. शर्मा की पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं. उन 4 या 5 क्वेश्चन के लिए अब हम अलग से 500 पन्ने की किताब तो पढ़ नहीं सकते, और इसीलिए अगर आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस आए, सो अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस जस्ट लीव देम ऑल टुगेदर. Irrespective, students, right now I am going to give you an idea so as to where this question had come from. So basically, students, these days UPSC is very interested in taking direct content from Upinder Singh. From Romila Thapar. Now, in front of your screen, I have this cutout image of the first page of Romila Thapar. Her book's name is The Penguin History of Early India. Okay. Now, in that, students, we have a specific chapter with respect to the Mauryan Empire. Now, in that chapter, you will see that she has given an entire description so as to how slavery came into being in India. Apart from that, she tells us that how Megasthenes and Arthashastra talk about the presence of slavery, how the slaves were created and how the slaves were emancipated. So this is a cutout. The page number is 186, students, for your reference, from Romila Thapar. If you will look here, students, you will see from here itself that the conditions that led to slavery were listed in more than one text, and out of these one was Arthashastra. Now, according to the students, a person could become a slave either by birth, or they could voluntarily sell themselves to become a slave, or they can become a slave by being captured in war,
or they could become a slave as a result of judicial punishment. तो 4 कंडीशन बता रखी है रोमिला थापर ने हमें। इन 4 के तहत कोई भी इंसान स्लेव बन सकता है। या तो वो बाय बर्थ स्लेव है, यानी कि वो किसी स्लेव के यहाँ पैदा हुआ है तो वो बाय बर्थ स्लेव हो गया। दूसरा, वो खुद अपने आप को बेच सकते हैं और स्लेव बन सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर वो किसी वॉर के अंदर कैप्चर हो रहे हैं, मान लीजिए कलिंग वॉर हुआ और कलिंग वॉर के अंदर जो लोग कैप्चर हो गए उनको स्लेव बना दिया गया। और चौथा, अगर किसी आदमी ने कोई ग्रेव क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट में स्लेव बनाया जा सकता है। ये तो क्या हो गए भाई, ये हमारे 4 तरीके हो गए जिसकी वजह से कोई इंसान स्लेव बनता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे को स्लेव और मास्टर के रिलेशनशिप के बारे में भी बता रखा है। इसमें ये बता रखा है कि अगर कोई स्लेव है, अगर कोई फीमेल स्लेव है, वो अगर अपने मास्टर को एक सन बेयर करती है, दैट सन शुड बी ऑफ द मास्टर, देन शी बिकम्स लीगली फ्री, यानी कि वो लीगली फ्री हो जाएंगी, अब वो स्लेव नहीं रहेंगी। और उसी के साथ साथ जो बच्चा उनका है उसको मास्टर के सन होने का स्टेटस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप, खास करके फीमेल स्लेव की रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है। एंड दीज आर द एग्जैक्ट पॉइंट स्टूडेंट्स दैट आर आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद में दोबारा अपने सवाल पर चलते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। इसके अंदर बोला गया है दैट अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने वो 4 कंडीशन देखी जिसकी वजह से कोई इंसान स्लेव बन सकता है। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई इंसान कोई हीनियस क्राइम करता है तो जुडिशियल पनिशमेंट के तहत उसको स्लेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। Second, students, the second statement says that if a slave bore her master a son, then she will be legally free. Now this, students, is also absolutely correct. अभी हमने slave और master की relationship देखी, और अगर एक female slave अपने master को एक son bore करती है तो वो legally free हो जाती है। Now students, the third statement says that if a son born to a female slave was fathered by her master, then the son was entitled to legal status of the master's son. Now this, students, again is going to be absolutely correct. ये लाइन भी आपकी सीधी सीधी रोमिला थापर से उठाई गई है, और हम देखते हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, एंड हेंस आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। अब स्टूडेंट्स, इस सवाल का टेक अवे क्या है? इस सवाल का टेक अवे सिर्फ इसका आंसर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब बार बार एनालाइज करते हैं तो हम कुछ थीम्स निकाल लेते हैं जिनके ऊपर रेगुलर से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, जैनिज्म और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो पिछले कई साल का ट्रेंड देखते हुए हमें ये मालूम होता है कि इनके अंदर थोड़े ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, और अगर इनके लिए हम थोड़ा सा हायर सोर्स उठा के एक बार के लिए नोट्स बना ले तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ठीक से एनालिसिस करेंगे तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि स्लेवरी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके अलावा पोर्ट्स, आपके एंशिएंट इंडिया के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर, और उसी के साथ साथ जो हमारी लॉ से रिलेटेड किताबें हैं, जो हमारी लीगल बुक्स हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे टाइम एंड अगेन सवाल आते हैं और थोड़े इन डेप्थ सवाल आते हैं। तो यहाँ से आप इस टेक अवे को ले लें और इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में बना कर रखें। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका 2022 से है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने उनके फेथ के बारे में लिखा गया है, और हमसे पूछा गया है कि भाई ये सही मैच्ड हैं या नहीं है। Now here students, again I would like to tell you first of all the level of this particular question.
लेवल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट स्टूडेंट्स इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक या दो स्कॉलर्स के बारे में भी श्योरिटी है कि हाँ भाई ये जैन स्कॉलर है या फिर ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये यूपीएससी में पहली बार आए हैं। इन्होंने इंस्टेड ऑफ ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, इसकी जगह इन्होंने लिख दिया कि एक पेयर ठीक है, दो पेयर ठीक है, सारे पेयर ठीक है, एक्सेट्रा। तो या तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए या फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो एक तो इसका कंटेंट भी डिफिकल्ट है, दूसरा जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट है। कंटेंट इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि शुरू के जो दो स्कॉलर्स हैं, आर्यदेव और दीगनाग, इनका नाम आपको रूटीन बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, और सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में पीएचडी तो कर नहीं सकते। ठीक है, इररेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। सो बेसिकली आर्यदेव और दीगनाग, इन दोनों को समझने के लिए हमें बुद्धिज्म की इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। बुद्धिज्म में बुद्धिज्म के जो अलग अलग सेक्ट हैं उनकी थोड़ी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, सबसे पहले पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया है कि हमारे बुद्धिज्म के भाई दो मेजर स्कूल थे, हिनायान और महायान। ये तो सबको ही पता होगा। अब हिनायान और महायान जो है स्टूडेंट्स, ये आगे जाके और स्कूल्स के अंदर टूट गए। फॉर इंस्टेंस हिनायान स्कूल दो मेजर स्कूल्स में टूटता है, जिसमें एक है वैभाषिक स्कूल, जिसे सर्वस्तिवदा या सर्वस्तिवादिन स्कूल भी कहा जाता है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा स्कूल है उसका नाम है सौत्रांत्रिक स्कूल। हिनायान के अलावा दूसरा स्कूल हो गया महायान स्कूल, और महायान स्कूल भी आगे जाके दो मेजर स्कूल्स में टूट जाता है, जिन्हें हम कहते हैं शून्यवाद या फिर मध्यमक, और दूसरा है विज्ञानवाद या फिर योगचार। तो ये हमारे हिनायान और महायान के दो मेजर सब स्कूल्स हो गए। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है। बेसिकली स्टूडेंट्स हिनायान का एक स्कूल है दैट इज सौत्रांत्रिक, और महायान का एक स्कूल है योगचार या फिर विज्ञानवाद। इन दोनों की आइडियोलॉजी से मिलकर एक नया स्कूल बनता है, और उस स्कूल की जो मेन पर्सनैलिटी है, उस स्कूल को स्टार्ट करने की जो मेन पर्सनैलिटी है, उस स्कॉलर का नाम है दीगनाग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो दीगनाग हैं उन्होंने एक नया बुद्धिस्ट स्कूल स्टार्ट किया था, सौत्रांत्रिका और योगचार स्कूल को मिलाकर, और ये स्कूल जो है 5th सेंचुरी एडी या फिर 5th सेंचुरी सीई में शुरू हुआ था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, दैट दीगनाग इज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। अब इतनी सी बात को समझने के लिए हमें इतना सारा कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ता है, और इसीलिए स्टूडेंट्स कभी कभी अगर इतने डेप्थ के क्वेश्चंस आ जाएं तो हमें उन्हें नेगेटिव कराने से बेटर है कि छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स दीगनाग के बारे में कुछ और भी समझ लेते हैं। सो बेसिकली दिस पर्सन, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ही स्टार्टेड अ न्यू स्कूल विद इन बुद्धिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स he has also written multiple literary texts, out of which the most famous one students was Praman Samuchay. Now Praman Samuchay is one text that is dealing with Buddhist philosophy, and these include concepts such as perception and inference. आप देखेंगे हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉजिक होते हैं, वेस्टर्न लॉजिक भी होता है और इंडियन स्कूल्स ऑफ लॉजिक भी होते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अंदर हमारे पास में जैसे कि सांख्या हो गया, योगा हो गया, हमारे पास मीमांसा हो गया। उसी तरह से बुद्धिज्म के अंदर भी लॉजिक जो सब्जेक्ट है उसको डेवलप किया गया था, और इसके ऊपर काम दीगनाग ने किया है अपनी प्रमाण समुच्चय में। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्लाइड का जो टेक अवे है वो ये है कि दीगनाग जो थे वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। Now, apart from Deganaag students, another scholar whose name is given was Aryadev. Now, in order to understand Aryadev, let's have a look at this particular slide. So, basically, students, as I've already told you, in Mahayana tradition, we have a sub-school which is known as Madhyamak or Shunyavad.
Now, this particular school students was started by a Buddhist scholar known as नागार्जुन. और नागार्जुन के जो सबसे फेमस या सबसे बड़े डिसाइपल थे उनका नाम था आर्यदेव. आर्यदेव ने एक बहुत ही फेमस किताब भी लिखी है जिसका नाम है चतुष्शतक. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमें क्या पता चलता है कि आर्यदेव जो हैं वो भी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं. ऑलराइट, तो इन दोनों के ही बारे में दीगनाग और आर्यदेव यहाँ से इस पर्टिकुलर स्लाइड से हम याद रखेंगे. दोनों बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, दोनों की किताबों के नाम याद रखेंगे और दोनों ने किन स्कूल्स को बनाने में अपना योगदान दिया वो हम याद रखेंगे. इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें एक तीसरा नाम दिया हुआ है नाथ मुनि का. अब नाथ मुनि की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल आपको अपनी एनसीईआरटी नई पुरानी दोनों आर एस शर्मा और आपकी जो नई एनसीईआरटी है क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 उसके अंदर आपको नाथ मुनि का नाम मिल जाएगा. ये एक अलवर सेंट थे. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे हिंदुइज्म के अंदर एक भक्ति मूवमेंट आया था और भक्ति मूवमेंट के तहत हम देखते हैं कि अलवर और नयनर सेंट्स आए थे. अलवर सेंट वो थे जो कि विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की प्रेज में पूजा किया करते थे. और इसमें एक फेमस अलवर सेंट थे नाथ मुनि जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है दिव्य प्रबंधम. जिसका नाम है दिव्य प्रबंधम. तो यहां से हमें पता चलता है दैट नाथ मुनि इज अ वैष्णव सेंट. चलिए स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन के साथ नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Please excuse me. Now here students, as we can see, we are given names of these three persons. पहले हैं आर्यदेव और इनके आगे लिखा है जैन स्कॉलर. ये गलत होगा स्टूडेंट्स क्योंकि अभी हमने देखा कि आर्यदेव जो हैं वो नागार्जुन के सबसे बड़े डिसाइपल थे और ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं ना कि जैन स्कॉलर हैं. सेकेंड पेयर में हमें दिया हुआ है दीगनाग और उनके आगे लिखा है बुद्धिस्ट स्कॉलर. ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा कंसिडरिंग द डिस्कशन दैट वी हैव जस्ट डन. द थर्ड पॉइंट स्टूडेंट सेज दैट नाथ मुनि इज अ वैष्णव स्कॉलर. ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. क्यों? क्योंकि नाथ मुनि एक अलवर सेंट थे और अलवर्स वो सेंट होते हैं जो कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं. Keeping this in mind students, we can see that two pairs are correct and hence our final answer for this particular question is going to be option C. इस आंसर के साथ साथ अगेन स्टूडेंट्स की टेक अवे क्या है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, रूटीन बुक्स में नहीं मिलेगा. लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी थोड़ी इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी चाहिए जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, स्लेवरी, एंशिएंट इंडियन पोर्ट्स, लॉ की किताबें एटसेट्रा. अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई करके इन पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लेंगे तो हो सकता है कि हमारे अपकमिंग एग्जाम के अंदर हम अपने आंसर्स को करेक्ट कर पाए. Keeping this in mind students, let's now proceed towards the next question. This question is also from 2022 and this question is asking us to identify a town which is well known for its water harvesting and management, which was built by a series of dams and channelizing water into connected reservoirs. शॉर्ट करते हैं इस पॉइंट को. बेसिकली इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे आपको 4 एंशिएंट टाउन्स के नाम दिए गए हैं और आप हमें बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा टाउन है जो कि अपनी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता है. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सवाल आंसर बहुत ही इजी है, सबको ही आता होगा. इसका आंसर है धोलावीरा. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो समझने की बात है, ओके पहले लेवल देख लेते हैं. लेवल क्या है? एक्सट्रीमली इजी. एक्सट्रीमली इजी. अगर आपने नॉर्मल अपनी एनसीईआरटी का हड़प्पन सभ्यता का चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर धोलावीरा होने वाला है. लेकिन स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द करंट अफेयर्स. व्हाई? Because students in the year 2021 we see that Dholavira was declared as the UNESCO World Heritage Site, making it the 30th World Heritage Site from India.
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2021 में जैसे ही इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, क्या होगा भाई, न्यूज़पेपर्स के अंदर भर भर के इसकी कवरेज हुई है। हिंदू में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है। और जब कोई भी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है तो उसके कोई पैरामीटर्स होते हैं, उसके कोई पैरामीटर्स होते हैं भाई, कोई कारण तो होगा ना जिस वजह से वो साइट इतनी पॉपुलर है, वो साइट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जा रहा है। तो ये जो पैरामीटर्स थे स्टूडेंट्स, इनका डिस्कशन बहुत एट लेंथ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में हुआ है। और अगर आप करंट अफेयर्स बार बार पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड में सॉल्व होने वाला था। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा ढोलावीरा के बारे में समझ लेते हैं। ढोलावीरा स्टूडेंट्स वाज अ साइट फ्रॉम द mature phase of Harappan civilization. This particular site, students, was discovered by a person known as J.P. Joshi, and this is the 5th largest site with respect to the Indus Valley civilization. One of the most unique features, students, of Dholavira is that unlike other cities of IVC, which are divided into two parts, that is Citadel and lower town which is meant for residential purposes, Dholavira is divided into three parts. Why? Because it has a citadel, it has a lower town, but it also, students, has a middle town. So this is one of the unique features of Dholavira. Apart from that, students, some things that make Dholavira stand apart in comparison to all other IVC sites is that, first of all, it was a site that was located in semi-arid area. सेमी एरिड का मतलब सूखा एरिया, गुजरात के अंदर है। गुजरात एक सूखा स्टेट है और यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे लोगों को कोई ना कोई यूनिक तरीके निकालने ही पड़ते हैं कि भाई पानी को कैसे सेव किया जाए जिससे कि एग्रीकल्चर में यूज कर ले। तो नेचुरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हड़प्पन्स थे उन्होंने बहुत सारे रेजर्वॉयर बनाए। रेजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, पानी रोकने की जो जगह हो गई उसको हम रेजर्वॉयर बोलेंगे। उसी के साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही यूनिक वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया। इसके अंदर आपको वाटर चैनल्स मिलेंगे और डैम्स मिलेंगे जिनसे पानी की स्ट्रीम्स को रेगुलेट किया जाता था, सो दैट वो सीधे सीधे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जाके उनको इरिगेट कर सके। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनका कंस्ट्रक्शन जो कि स्टोन में हो रखा है वो भी इसका एक यूनिक फीचर था और इनकी बरियल्स को भी काफी डिफरेंट माना जाता था ऑल टुगेदर। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं दैट मेक ढोलावीरा स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर IVC sites, and as a result, students, you will see that this particular site was declared as a World Heritage Site. अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स, स्टूडेंट्स, एक्सकवेशंस में हमारे को यहाँ से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स के अगर हम नाम लें तो हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, शेल मिले हैं, शेल माने आपके सी शेल्स हो गए। उसके अलावा स्टोन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ज्वेलरी बनी हुई मिली है और टेराकोटा का सामान हमारे को मिलता है अलोंग विद आइवरी। आइवरी क्या होती है, हाथी दांत से जो बनती है उसको हम आइवरी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि हमें यील्ड हो रहे हैं फ्रॉम ढोलावीरा। इस डिस्कशन से स्टूडेंट्स हमारे को मेजर फीचर्स, लोकेशन और उसके अलावा क्या एक्सकवेशन में हमें ढोलावीरा से यील्ड हुआ है वो सब पता चल जाता है। और इस इंफॉर्मेशन को कवर करके दोबारा अपने सवाल पर आते हैं और यहाँ पे बड़ा सिंपली हमें पता चल जाता है that our answer is going to be option A, that is Dholavira is a unique town that was known for its water harvesting and unique water management, and it is because of this reason that in the year 2021 it was declared as the UNESCO World Heritage Site. ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द पेपर ऑफ 2021। 2022 में अपने पास 3 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से आए हैं और इन 3 क्वेश्चन से आपको अंदाज हो गया होगा कि भाई एंशिएंट इंडिया के ऊपर भी फोकस किया जाता है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हिस्ट्री कहीं नहीं छोड़नी है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि 10 किताबें पढ़िए, लेकिन RS शर्मा को 3-4 बार पढ़िए जिससे कि अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 तो हमारे ठीक हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ 50% लानी है।
Okay, students, coming back to another question. This question is now from 2021 and it is pertaining to the political history of India, specifically in the post-Gupta period. हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी डायनेस्टिक हिस्ट्री को अरेंज करें, आपको क्या है, आर एस शर्मा का इंडेक्स भी रटा हुआ होना चाहिए। इंडेक्स से आपको एंशिएंट इंडिया में कैसे मूव करना है, किस एम्पायर के बाद कौन सा एम्पायर आया, ये समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा सबसे बड़ा एम्पायर तो था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमारे पास में डायनेस्टीज हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक्स हो गए, शाकाज हो गए, पार्थियन हो गए, कुषाण हो गए। उसके अलावा हमारे पास में सातवाहाना डायनेस्टी है, शुंगाज हैं, कानवाज हैं, ये सारी डायनेस्टीज पोस्ट मौर्यन पीरियड में आ गई। और पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद हम देखते हैं एक और सेंट्रलाइज्ड एम्पायर हमारे देश में आता है, जिसे हम कहते हैं गुप्ता एम्पायर। अब स्टूडेंट्स, जब गुप्ता एम्पायर टूटता है तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक बार को हर्षवर्धन की डायनेस्टी आने से पहले हम देखते हैं कि छोटे छोटे रीजनल एम्पायर्स गुप्ता एम्पायर की जगह ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारे को इन अलग अलग एम्पायर्स के नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन से वो एम्पायर्स हैं जो गुप्ता के डिक्लाइन के बाद और हर्षवर्धन के डिक्लाइन से पहले इंडिया में प्रॉस्पर कर रहे थे। इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स, हम पहले इस क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं। इसका लेवल है एक्सट्रीमली इजी, नॉट डिफिकल्ट। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे पुरानी एनसीईआरटी से आया है। मैं आपको ट्रेस भी करके दिखा देती हूँ। ये रही हमारी पुरानी एनसीईआरटी की शक्ल। आर एस शर्मा ने ये किताब लिखी है और इसके अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्स का भी एक कटआउट दे रखा है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 19 है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसका जो लास्ट पार्ट है, फॉल ऑफ द एम्पायर, इसके अंदर आपको इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द डायनेस्टीज के नाम मिल जाएंगे और इजीली आंसर सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपके लिए चैप्टर का कटआउट भी निकाला है। कहाँ से है ये? आपका चैप्टर नंबर 19 और उसमें फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर वाला जो पार्ट है, वहां पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे, लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग इट। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे को ये नाम दिया हुआ है मौखारी। मौखारी हु रोज टू पावर इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो एक डायनेस्टी का नाम तो आ गया आपके पास, मौखारी। ठीक है, मौखारीज ऑफ यूपी। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और नाम दिया हुआ है, वालाभी। ठीक है, रूलर्स ऑफ वालाभी। तो यहाँ पे डायनेस्टी का नाम तो नहीं दिया हुआ, बट वालाभी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इनका नाम भी बता देती हूँ। इनका नाम है मैत्रिकाज। इनका नाम है मैत्रिकाज ऑफ वालाभी। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पे कन्नौज के बारे में बता रखा है कि कन्नौज अभी सीट ऑफ पावर बनने वाली है और उसी के साथ एक नाम ये दे रखा है थानेश्वर। तो एक और जगह का नाम हमारे को दे रखा है थानेश्वर। ये थानेश्वर जो है, यहाँ पे जो डायनेस्टी थी उनका नाम था पुष्यभूति। तो हमारे को ये कंप्लीटली मिल जाता है, वाला भी मिल जाता है और थानेश्वर मिल जाता है। और उसी के साथ साथ एक नाम हमारे पास ये रहा, लेटर गुप्ताज ऑफ मगध। लेटर गुप्ताज ऑफ मगध, ये क्या दिया हुआ है हमें? ये हमारे को बेसिकली दिया हुआ है कि गुप्ता एम्पायर जब टूट जाता है उसके बाद कौन सी डायनेस्टीज हैं जो कि इस एरिया में, जहां पे पहले गुप्ताज रूल कर रहे थे, वहां पे पावर में आ रही हैं। तो यहाँ पे 4 नाम मैंने आपको दिखा दिए, मौखारी, मैत्रिका, पुष्यभूति और लेटर गुप्ता। और ये कटआउट मैंने कहाँ से लिया है आपके लिए? पुरानी एनसीईआरटी से। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा अपने सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला पॉइंट, द गुप्ताज ऑफ मगध। मैंने आपको बताया लेटर गुप्ताज ऑफ मगध करके हमारे पास एक किंगडम है जो कि गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद में पावर में है। उसके अलावा मैंने आपको बताया थानेश्वर में बैठे हैं पुष्यभूति। ठीक है, उसके अलावा मौखारीज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मौखारीज जो कि कन्नौज में बैठे हैं। एंड देन वी हैव द मैत्रिकाज ऑफ वालाभी। इससे सिंपली हमारा आंसर आ जाता है, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3, 4 and 6 are the dynasties or the kingdoms that were holding power in the post Gupta period before the rise of Harshvardhan.
नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन मैं आपको यही बताना चाहूंगी, सोर्सेज कम रखने हैं लेकिन उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में सिर्फ ये देख लेते हैं कि हाँ भाई गुप्ताज का फॉल क्यों हुआ, लेकिन गुप्ताज के फॉल के बाद कौन से किंगडम्स राइज करे इसके ऊपर बहुत बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए काफियों को ये सवाल डिफिकल्ट लगा। लेकिन अगर आप सोर्सेस के हिसाब से बात करें, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। Keeping this in mind students, let's proceed further to the next question. ये क्वेश्चन आपका 2021 से है, मैच द फॉलोइंग है, हमारे को एक साइट का नाम दिया हुआ है और उसके साथ में ये दिया हुआ है कि भाई ये वेल नोन किस चीज के लिए है। 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का लेवल मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो लेवल है दैट इज फ्रॉम मीडियम टू डिफिकल्ट। मीडियम टू डिफिकल्ट इसलिए बोलूंगी स्टूडेंट्स क्योंकि बर्जाहोम और गणेश्वर ये जो 2 साइट के नाम दिए हुए हैं ये आपको एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है चंद्रकेतुगढ़, जो सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है चंद्रकेतुगढ़, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और ऑप्शंस भी कुछ इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि अगर आपको चंद्रकेतुगढ़ का आंसर नहीं आता तो आप फाइनल आंसर नहीं निकाल पाएंगे, और इसीलिए मैंने इसका लेवल मीडियम टू डिफिकल्ट रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बारे में बताऊं तो ये दोनों आपको आर एस शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ये आपके सामने आर एस शर्मा के इंडेक्स का कटआउट है। इसमें से अगर हम स्टोनेज वाले चैप्टर में जाएं तो वहां पे आपको बर्जाहोम मिल जाएगा और बर्जाहोम किस लिए फेमस था ये आपको पता चल जाएगा। गणेश्वर की अगर हम बात करें तो गणेश्वर साइट आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगी, दैट इज द स्टोन कॉपर फेस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे देश के अंदर क्या है, हड़प्पन सभ्यता खत्म होने के बाद में इंडिया में एक बार को चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था, स्टोन कॉपर फेस। उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा एक कल्चर चल रहा था जिसे बोलते हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। इसकी इंफॉर्मेशन आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर मिलती है और इससे आप पॉइंट 1 और 3 तो करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है पॉइंट नंबर 2 पे जो कि आपको रूटीन बुक्स में नहीं मिलेगा। चलिए 1 बाय 1 करके इनका डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बर्जाहोम जो है वो आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलता है। यहाँ पे लिखा है दैट बर्जाहोम इज वेल नोन फॉर रॉक कट श्राइन्स। नाउ स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट बिकॉज first of all it is a site from Kashmir. Barzahom is a site from Kashmir, and the second thing is that it was popular for its pit dwellings. It was popular for its pit dwellings. पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड पिट्स के अंदर लोग रहा करते थे और इसलिए बर्जाहोम एक बहुत ही पॉपुलर साइट मानी जाती है, ना कि रॉक कट श्राइन्स के लिए। फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स, अगर आपको इतना सा भी पता है कि बर्जाहोम जो है वो एक स्टोन एज की साइट है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यार स्टोन एज के अंदर किस बात के श्राइन्स, स्टोन एज के अंदर कौन से टेम्पल बन रहे थे। तो अगर आप इतना सा भी लॉजिक लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट गलत है। अगर आपको पिट ड्वेलिंग्स का पॉइंट नहीं भी याद है तो भी आप इस पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये मैंने आपको बताया पुरानी एनसीईआरटी में भी है और आपकी जो क्लास 12th की नई एनसीईआरटी है, क्लास 12th की नई एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसका जो पहला चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके अंदर भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है उसके अंदर भी आपको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के बारे में बताया हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको कटआउट दे रखा है 6.1 नंबर का जो आपका पॉइंट है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दैट देयर वर लोकल कम्युनिटीज which were supplying copper and these communities were from the Khetadi region of Rajasthan. So these communities were supplying copper to the Harappan civilization. Apart from that students, in the Khetadi area we find a culture which is known as Ganeshwar Jodhpura culture that was known for its copper objects. ठीक है, that was known for its copper objects. Now from this simple information we know that Ganeshwar is a place which were popular for its copper artifacts and hence the third pair is going to be correct.
अब इसके साथ साथ हम सेकंड पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो 2021 का ये सवाल है, और 2021 में ही नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएस गए थे। वो यूएस एक विजिट के लिए गए थे, और जब वो उस विजिट के लिए गए थे तो उस टाइम पे हमारे पास में जो यूएस की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया को कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो हमें बिलोंग करते हैं वो रिटर्न किए थे, और ये आर्टिकल काफी न्यूज में आया था। अब इस आर्टिकल के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि चंद्रकेतुगढ़ की बात करी गई है, जो कि एक साइट है वेस्ट बंगाल में, जो कि अपनी टेराकोटा आर्ट के लिए बहुत जानी जाती है। ये एक्सर्प्ट स्टूडेंट्स मैंने इसी आर्टिकल में से निकाला है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन आपके करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आजकल हिस्ट्री करंट अफेयर्स से डिवॉइड नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिल ही जाएंगे, और ये रहा आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर नरेंद्र मोदी कहीं भी जाके आ रहे हैं, उनकी अगर कोई विजिट है ऑफिशियल विजिट और उसमें कल्चर रिलेटेड कोई पॉइंट है तो उसको जरूर याद रखना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने कुछ मूर्तियां जैसे कि नटराज की मूर्ति और कुछ और ऑब्जेक्ट्स इंडिया को रिटर्न किए थे जो हमें ही बिलोंग करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो इन्होंने हमें दिए थे वो टेराकोटा के बने हुए थे, जो कि चंद्रकेतुगढ़ को बिलोंग करते हैं, और ये न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ है। Keeping that in mind, students, now let's come back to our question and the second point. And here, students, you will see that Chandraketugad, which is a prominent site in West Bengal, is well known for its terracotta art. और इससे हमें ये पता चलता है कि सेकंड और थर्ड दोनों ही पेयर ठीक हैं, and hence our final answer for this particular question is going to be option D. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की टेक अवे क्या है? क्वेश्चन वैसे तो मीडियम टू डिफिकल्ट है, मीडियम टू डिफिकल्ट सिर्फ सेकंड पॉइंट की वजह से है, लेकिन सेकंड पॉइंट भी तब आसान हो जाता है अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का आजकल हिस्ट्री के सवाल बनने में बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट तो सीधे सीधे आपकी एनसीईआरटी से आया है। नाउ स्टूडेंट्स, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question, students, again is from the year 2021, and this question is pertaining to the books related to law. अब ये जो सवाल है स्टूडेंट्स, इसके बारे में सबसे पहले इसके लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल जो है इसका बड़ा डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है ये, क्योंकि अगर आपने इन दोनों किताबों के नाम भी पढ़े हुए हैं और आप जानते भी हैं कि भाई ये लीगल किताबें हैं, तो भी जितनी डेप्थ में इनके ऊपर सवाल पूछा गया है वो नॉर्मली आता नहीं है। अगर आपने पॉलिटी के अंदर ठीक से फैमिली लॉ, जिसको हम एक तरह से कहते हैं कि भाई पॉलिटी के अंदर की फैमिली प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होती है, वहां पे भी इस तरह का डिस्कशन होता है। तो अगर आपने वहां पे इसको ठीक से पढ़ रखा है तो थोड़े बहुत चांसेस थे कि ये क्वेश्चन ठीक हो जाता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कहूंगी कि इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके अंदर हमें 2 किताबों के नाम दिए गए हैं, दयाभाग और दूसरी है मिताक्षर, और हमसे इनके की कंटेंट्स के बारे में पूछा गया है। चलिए इस सवाल को रीड करने से पहले ये देखते हैं कि भाई ये आ कहां से गया। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपका सीधे सीधे करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है, और अगेन मैं आपको फिर से दोहराऊंगी, करंट अफेयर्स हिस्ट्री के लिए यूपीएससी में पिछले 2 से 3 साल में काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सवाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास न्यूज में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि भाई विमेन के प्रॉपर्टी के अंदर क्या इनहेरिटेंस राइट्स हैं, और जब भी हम इस तरह की इनहेरिटेंस वगैरह की बात करते हैं, हिंदू लॉ की, हिंदू फैमिली लॉ की बात करते हैं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें अपनी एंशंट किताबों पर जाना पड़ता है कि भाई हमारा धर्म क्या कहता है। तो इन आर्टिकल्स के तहत काफी ज्यादा मिताक्षर और दयाभाग की बात हुई थी। क्या बात हुई थी उसका डिस्कशन करते हैं। सो बेसिकली ये दोनों 2 लॉ स्कूल्स हैं, मिताक्षर और दयाभाग। लॉ स्कूल भी है और किताबें भी हैं, ये दोनों मिताक्षर और दयाभाग। ठीक है, मिताक्षर की अगर हम बात करें तो इसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है, और ये यज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि अगेन एक लॉ की किताब है, उसके ऊपर एक कमेंट्री है। उसी के साथ साथ अगर हम दयाभाग की बात करें तो दयाभाग भी एक लॉ की किताब है जिसको जिमुत वाहना ने लिखा है।
इन दोनों ही किताबों के अंदर प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करी जाए फैमिली के अंदर, बेटी के क्या राइट्स हैं, बेटे के क्या राइट्स हैं, अपर कास्ट के क्या राइट्स हैं, लोअर कास्ट के क्या राइट्स हैं, इन तरह की चीजों की बात करी गई है। मिताक्षर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो लॉ लिखा गया है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता था। वेयर एज स्टूडेंट्स अगर हम दया भाग की बात करें तो इसके अंदर जो लॉ है वो बंगाल और असम के अंदर ज्यादा पॉपुलर था। मिताक्षर स्कूल ये कहता है कि किसी परिवार का जो बेटा है वो बर्थ के साथ ही अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट अक्वायर कर लेता है और अपने पिता की लाइफ टाइम के अंदर कॉपर सेनरी राइट्स उसको मिलते हैं अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में। कॉपर सेनरी का मतलब ये होता है जॉइंट राइट्स, यानी कि जितने राइट्स पिता के पास हैं उतने ही राइट्स बेटे के पास हैं अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी के ऊपर, और इन राइट्स को वो अपने पिता के जीवित रहते हुए भी एंजॉय कर सकता है। लेकिन दया भाग में इससे कुछ हटके लॉ दिया हुआ है। दया भाग कहती है कि जो बेटा है उसकी कोई ऑटोमेटिक ओनरशिप नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, और उसका फैमिली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अपने फादर की डेथ के बाद ही अक्वायर होना चाहिए। इसी के तहत दया भाग ये भी कहती है कि जो बेटा है उसको कॉपर सेनरी राइट्स अपने पिता के जीवित होने के तहत तो नहीं मिलेंगे, यानी कि अगर उसके फादर जिंदा हैं तो उसका अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से ऑपोजिट बात करते हैं। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद हम अपने सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे अपने को 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तीनों स्टेटमेंट्स मिताक्षर और दया भाग से एसोसिएटेड हैं और हमें बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ठीक है या कौन सा गलत है। यहाँ पे स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट मिताक्षर was the civil law for upper caste whereas the दया भाग was the civil law for lower caste। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की दोनों लॉ की किताबें हैं और दोनों की दोनों फैमिली राइट्स चाहे वो अपर कास्ट के हों चाहे वो लोअर कास्ट के हों उनके बारे में डिस्कशन कर रही हैं, एंड हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली बोगस एंड इनकरेक्ट। Coming to the second statement, students, it says that in the Mitakshar system, the son can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in the Dayabhag system, it is only upon the death of the father that the son can claim right to the property। अब ये जो पॉइंट है ये एब्सोल्युटली सही है। ये एब्सोल्युटली इसलिए सही है क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि मिताक्षर सिस्टम के अंदर कॉपर सेनरी राइट्स जो हैं वो बेटे के पास होते हैं, यानी कि पिता के जीवित होते हुए भी वो प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम कर सकता है, जबकि दया भाग कॉपर सेनरी राइट्स पिता के जीवित होने के समय डिनाई करती है। And hence from this particular point we can see that the statement 2 is going to be correct. Coming to the third statement, students, it says that the Mitakshar system deals with the matters related to property held by male members only of a family, whereas Dayabhag system deals with matters related to property held by both male and female members. Now students, this particular point again is absolutely incorrect because both the books are legal books and they take into purview all the aspects and genders of the society. Keeping that in mind, students, we see that only the second statement is correct and hence our final answer for this particular question is going to be option B. की टेक अवे क्या है? सवाल डिफिकल्ट है, छोड़ा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर्स में यूं तो आ रहा था और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग है, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का पार्ट है ये। अगर आपने पॉलिटी में थोड़ा इन डेप्थ मिताक्षर और दया भाग के बारे में पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर जरा सी भी कंफ्यूजन महसूस होती है तो आप इस सवाल को छोड़ देंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2020।
2021 में भी स्टूडेंट्स हमने देख लिया 3 सवाल आए हैं एंशिएंट इंडिया से, और यहाँ पे फिर से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई एंशिएंट इंडिया छोड़नी नहीं है। RS शर्मा जो है उसकी पुरानी एनसीईआरटी और उनकी जो पब्लिकेशन है उसको जितनी बार आप पढ़ सकते हो, 2 से 3 बार अपन ने रीड दी, नोट्स बनाए और फिर नोट्स को रिवाइज करते रहें जिससे कि हमारे क्वेश्चंस ठीक हो पाए। चलिए स्टूडेंट्स 2020 पर हम आ गए हैं। 2020 का पहला सवाल एंशिएंट इंडिया से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाउ हियर स्टूडेंट्स वी आर गिवन 4 इवेंट्स, हमारे को 4 इवेंट के नाम दे रखे हैं और हमें इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकली स्टूडेंट्स हमें अरेंज करना है, तो पहले एक बार देखते हैं कि ये 4 इवेंट क्या है। बेसिकली आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमें 4 डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं, और अगर आपको पता है कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई कौन सी बाद में आई तो उससे आप इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो सवाल है मेरे अकॉर्डिंग टू मी this particular question is of medium level. In fact students it is easy to medium level. According to me it is a very easy question. Why? Because इसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपका सीधे सीधे RS शर्मा से है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जिस बच्चे को इंडेक्स याद है एंशिएंट इंडिया में उसके क्रोनोलॉजी के आंसर यूं सॉल्व हो जाएंगे। आज ही बैठे और RS शर्मा की बाहर से इंडेक्स पूरी पढ़ ले, इंडेक्स विद द सब टॉपिक्स, इतना भी अगर आपको आता है तो इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये पता चल जाएगा अच्छा पल्लव तो चैप्टर नंबर 6 में है लेकिन चोला तो चैप्टर नंबर 11 में है, यानी कि पल्लव पहले आया होगा। ठीक है, तो इससे आप इंडेक्स से भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहली डायनेस्टी इनके अंदर है पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर एमर्ज होती हुई दिखाई देगी अंडर महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, यानी कि वैसे तो आप देखेंगे गुप्ता पीरियड में ही पल्लव्स जो हैं धीरे धीरे पावर में आने लग गए थे। 3rd से 4th सेंचुरी एडी में हिस्टोरियंस मानते हैं कि पल्लव जो है वो कांची वाले एरिया यानी कि तमिलनाडु के अंदर धीरे धीरे पावर में आ रहे थे। लेकिन इनका जो क्लाइमैक्स पीरियड है यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गए थे वो टाइम पीरियड आपका पड़ता है 6th से 7th सेंचुरी का, जिसे हम पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं। तो पहली डायनेस्टी तो हो गई पल्लव। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब हर्षवर्धन की रेन खत्म हो जाती है उसके बाद में पोस्ट हर्षा पीरियड के अंदर हमारे पास 3 डायनेस्टीज आती हैं, जिसमें एक है हमारी पाला, एक है हमारी प्रतिहार और तीसरी है हमारी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये जो 3 डायनेस्टीज हैं स्टूडेंट्स ये तीनों आपस में मिलके एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करती हैं कन्नौज के लिए। कन्नौज क्या था स्टूडेंट्स? कन्नौज वाज द सीट ऑफ पावर ऑफ हर्षवर्धन, और मैंने आपको बोला ये तीनों कहाँ आ रही है? पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड में। इतना सब आपको सिर्फ इंडेक्स पढ़ के ही पता चल जाएगा। तो पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड में ये आ रही हैं, तो नेचुरली पल्लव्स के तो बाद में ही आएंगी। ठीक है, ये तीनों कन्नौज के लिए लड़ रही थी। अब यहाँ पे जो छोटी सी कंफ्यूजन है वो ये है कि इन्होंने पाला और प्रतिहारा दोनों का नाम दे दिया है। पाला और प्रतिहारा डायनेस्टी दोनों की दोनों लगभग 750 एडी में स्टार्ट हुई हैं, और इसीलिए इनके अंदर हमारे को एक चेंज दिया गया है। वो चेंज ये दिया गया है कि पाला डायनेस्टी की तो फाउंडेशन के बारे में पूछा गया है, जबकि प्रतिहारा डायनेस्टी के एक राजा की डेट पूछी गई है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन पहले स्टार्ट हुआ था और कौन सा बाद में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स भाई पाला डायनेस्टी जो है वो पहले आएगी, और जबकि प्रतिहारा के अंदर हमें उनकी एक फेमस रूलर का नाम दिया हुआ है जो कि बाद में आए थे 9th सेंचुरी के अंदर आए थे, जिनका नाम है राजा भोज। तो अगर आपको इतना सा ध्यान से अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आंसर बड़ा ही डुएबल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप अगर इंडेक्स ठीक से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि चोलास जो हैं, चोलास पहले तो संगम पीरियड में थे हमारे पास में। संगम पीरियड कौन सा हो गया आपका? संगम पीरियड इज बिटवीन सरका का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेशन। सरका 200 BC
से 300 एडी के बीच में हम देखते हैं संगम पीरियड है, जिसमें कि डीप साउथ में हमारे पास में 3 पावर्स हैं, चोला, चेरा और पांड्या। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं समय के साथ ये तीनों पावर्स डिक्लाइन हो जाती हैं, लेकिन 9th से 10th सेंचुरी वापस आते आते हम देखते हैं कि चेरा और चोला का वापस से उदय होता है, और यहाँ पे परंटक वन जो हैं वो इस नई उदय होने वाली चोला डायनेस्टी, जिनको हम इंपीरियल चोलास बोलते हैं, उसके एक फेमस रूलर थे। अगेन स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस भी बच्चे ने इंडेक्स भी ठीक से पढ़ रखी है उसको डायनेस्टिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से याद रहेगी। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा अपने सवाल पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, नंबर 2। सबसे पहले हमारे पास में है पल्लव, क्योंकि पल्लव तो आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड में ही है। पल्लव के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पाला डायनेस्टी की फाउंडेशन हो रही है, तो हमारे पास आएगा नंबर 4। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रतिहारा किंग भोज के अंदर कब राइज करे, वो थोड़ा सा लेट है, तो हमारा नेक्स्ट लॉजिकल डायनेस्टी जो होगा वो होगा प्रतिहारा। एंड देन फाइनली स्टूडेंट्स वी हैव चोलास। चोलास तो पावर में दोबारा आते ही 9th-10th सेंचुरी में है, तो ये आपके लास्ट में आएंगे, और इस सीक्वेंस को देख के हमें पता चलता है दैट आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। अभी भी स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगी, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है। इंडेक्स पढ़ के ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। All right students, let's proceed further towards the next question. It is also from 2020. इसके अंदर हमें एक टर्म दी हुई है हुंडी, और इसका मीनिंग हमसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेवल है एक्सट्रीमली इजी। ये जो टर्म है हुंडी, ये आपको सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, और उसके अलावा आपको सतीश चंद्रा की पब्लिकेशन में भी मिल जाएगी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो हमारी नई एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, जो मिडिवल इंडिया की एनसीईआरटी है, उसमें भी आपको ये टर्म हुंडी मिल जाएगी। हुंडी के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे मेटेलिक मनी के अलावा हम पेपर करेंसी की जगह बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया करते थे, कि मान लीजिए आपको मैंने कोई सामान दिया है, उसके रिटर्न में आपने मेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया जिसको आगे जाके मैं कैश करा सकती हूँ, ठीक है। सो हुंडी यहाँ पे उसके लिए जो शब्द यूज होता था उसे हम हुंडी कहते थे। एंड सिंपली ये लाइन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, हुंडी मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज। So here students, there is not much explanation for this particular question. The final answer for this is going to be option C. लेवल मैंने आपको बता दिया है, बहुत इजी है। आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये सतीश चंद्रा में मिल जाएगा। ये आपको सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा पब्लिकेशन ओरिएंट ब्लैक सोन की जो पब्लिकेशन है उसमें मिल जाएगा, और आपकी जो नई एनसीईआरटी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये क्या है, आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है, तो इसके अंदर भी आपको जो है हुंडी शब्द देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो 2020 के तो जो क्वेश्चंस थे काफी डुएबल थे, पहला वाला भी बहुत इजी था, और ये सेकंड वाला तो उससे भी ज्यादा इजी है। लेट्स प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 2020। अगेन तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं हम 2020 में भी, एंशिएंट इंडिया में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी, एंशिएंट इंडिया पे काफी फोकस किया जाता है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हिस्ट्री कहीं से भी नहीं छोड़नी है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से तो सवाल आते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं, कुल्य वपा और द्रोण वपा। ये जो दोनों टर्म दी हुई हैं, हमसे पूछा गया है कि भाई इनका मतलब क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो दोनों टर्म्स हैं, इनका नाम आपको गुप्ता पीरियड में मिल जाएगा। ये आपको पुरानी एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको आर.एस. शर्मा की जो पब्लिकेशन है उसके अंदर मिल जाएगा। आर.एस. शर्मा की पब्लिकेशन के अंदर इन दोनों टर्म्स के नाम लिए हुए हैं।
उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा जो इग्नू का मटेरियल होता है, इग्नू का जो मटेरियल होता है वो भी आपके नोट्स एनहांस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इग्नू के मटेरियल में से आप बहुत सारे टर्म्स और मीनिंग्स निकाल सकते हैं, एंशिएंट इंडिया में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये तो हो गए आपके सोर्सेस कि भाई कहाँ से ये सवाल आया था। उसके अलावा स्टूडेंट्स थीम क्या है आपकी, गुप्ता पीरियड का है ये सवाल। इसके साथ साथ इसका लेवल देख लेते हैं। लेवल में इजी तो नहीं बोलूंगी स्टूडेंट्स, इसको हम मीडियम मानेंगे क्योंकि हमारी रूटीन एनसीईआरटी में नहीं है और कई बच्चे पब्लिकेशन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो मीडियम हम इसको मानेंगे, लेकिन ये गुप्ता पीरियड में से है। और गुप्ता पीरियड के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है कुल्यवपा और द्रोणवपा, इनको यूज किया जाता था टू डिनोट मेजरमेंट ऑफ लैंड। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप गुप्ता इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता चल जाएगा। इन टर्म्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपके नोट्स एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर दे रखी है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स गुप्तास के अंदर जो भी लैंड कल्टीवेशन में होती थी, जिस लैंड के ऊपर खेती होती थी, उसे हम कहते थे क्षेत्र। ठीक है, उसी के साथ साथ जो लैंड कल्टीवेशन में नहीं होती थी, जो भी लैंड्स कल्टीवेशन में नहीं होती थी, उनके लिए जो टर्म्स यूज करी जाती थी उन्हें कहा जाता था खिला, अपरहत एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो गुप्ता एम्पायर बहुत बड़ा था। समुद्रगुप्त ने इसको सबसे ज्यादा फैलाया है और समुद्रगुप्त ने बहुत सारे फ्रंटियर किंगडम्स जैसे कि असम और बंगाल, इनको भी गुप्ता एम्पायर के अंदर ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे को दो टर्म्स देखने को मिलती हैं, कुल्यवपा और द्रोणवपा। और ये जो दोनों टर्म्स थी ये लैंड को मेजर करने के लिए यूज करी जाती थी। बंगाल के अलावा बाकी एरियाज के अंदर लैंड मेजरमेंट के लिए जो टर्म यूज करी जाती थी उसे हम कहते हैं निवर्तन, उसे हम कहते हैं निवर्तन। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, मे बी अगर आगे के एग्जाम में आ जाए तो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स कुछ और टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे कि जो विलेज रेसिडेंट्स थे उनको बोला जाता था ग्रामिका या फिर कुटुंबी या फिर महत्तराज। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू गुप्ता इकोनॉमी, जहाँ पे हम देखते हैं कि कल्टिवेटेड लैंड को क्या बोलते थे, अनकल्टिवेटेड लैंड को क्या बोलते थे, और कल्टिवेटेड लैंड का जो मेजरमेंट किया जाता था टैक्स पेमेंट के लिए, उन मेजरमेंट्स को क्या बोला जाता था। अब स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये सवाल बड़ा ही आसान बन जाता है। एंड वी नो दैट दीज टू टर्म्स आर पर्टेनिंग टू द लैंड और द इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता पीरियड, वेर इन दे आर यूज टू डिनोट द मेजरमेंट ऑफ लैंड। एंड हेंस our final answer for this particular question is going to be option A. With this students, let's proceed further to our next question, which is again from 2020. 2020 के अंदर तो 22 से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके एंशिएंट इंडिया से। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रखा है, हमें एक एक्सर्प्ट दे रखा है। इस सवाल के अंदर हमें एक एक्सर्प्ट दे रखा है और पूछा गया है कि ये जो लिखा हुआ है ये नीचे दिए गए राजाओं में से किसकी इंस्क्रिप्शंस में पाया गया है। अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लेवल की अगर हम बात करें तो ये इजी टू मीडियम है। इजी टू मीडियम इसलिए है क्योंकि हम सारे रूलर्स की इंस्क्रिप्शंस और उसका कंटेंट तो पढ़ नहीं सकते, तो नामुमकिन है, पता नहीं इंडिया में कितनी इंस्क्रिप्शंस थी। ठीक है, however we know the personality, we understand the personality of different rulers. For instance, if you study about Ashok, you will come to know that he was a very benevolent ruler. He was one person who used to respect seniors, juniors, Hindus, Jains, Buddhists, etc. So if you understand the personality of the ruler, you will be very easily able to identify कि भाई किस राजा ने इस तरह की बात लिखवाई होगी। चलिए इसको देखते हुए सबसे पहले तो एक्सर्प्ट पढ़ते हैं। एक्सर्प्ट बोलता है, whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect rather injures his own sect very severely.
सो बेसिकली इसके अंदर हमारे को हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो राजा है वो ये कह रहा है, जो इंसान खुद के रिलीजन को बहुत ज्यादा बड़ा मानता है या दूसरों के रिलीजन को डिमीन करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने रिलीजन को ज्यादा महान मानता है, वो इंटर्न अपने खुद के रिलीजन की बेइज्जती कर रहा है, उसको सीवियरली इंजर कर रहा है। अब ये बात अगर आप ऑप्शंस में देखें तो आपके अकॉर्डिंग किसने कही होगी? एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स, द आंसर इज गोइंग टू बी अशोक, क्योंकि अशोक ही वो इंसान थे जो कि सबसे ज्यादा रिलीजियस टॉलरेशन की बात करते थे। सबसे ज्यादा रिलीजियस टॉलरेशन की बात अशोक ने करी है। ही स्टूडेंट्स वाज वन पर्सन हु यूज्ड टू प्रोपगेट द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म। हम जानते हैं कि कलिंग वॉर के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में, बहुत ही ज़्यादा रिमोर्स में चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया और उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया और ये डिसीजन लिया कि मैं कभी भी वायलेंस नहीं करूँगा, मैं कभी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। इसी के साथ साथ बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि हर धर्म को टॉलरेट करने की बात करता है, और क्योंकि अशोक बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं इसीलिए अंदाज से आप बड़ा खुल के आंसर टिक कर सकते थे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये अशोक ने ही बोला होगा। इस अंदाज के बावजूद मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में बता देती हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इंस्क्रिप्शंस की बात हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आने ही अशोक चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ईडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस गढ़वाए ही अशोक ने हैं। हियर स्टूडेंट्स, जब इनके इंस्क्रिप्शंस की हम बात करें तो इंस्क्रिप्शंस में एक तो वो अपनी प्रजा से फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी प्रजा से क्या चाहता हूँ या मैं क्या सोचता हूँ। उसी के साथ साथ प्रजा की ड्यूटीज और अपनी ड्यूटीज के अलावा इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अशोक ने बुद्धिज्म के फीचर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। Now, these particular inscription students are, when we talk about the themes, what are the themes? We see that he's giving instructions to his citizens. Apart from that, he's talking about his own ideology, and apart from that, he's propagating Buddhism. In the second point, students, I have classified the inscriptions. They are basically categorized into three parts, that is pillar edicts, major rock edicts, and minor rock edicts. Now these inscriptions, students, were majorly written in Prakrit language and the script was Brahmi. Now this Brahmi script was something, students, whose knowledge was lost after a point of time, and hence we see that there was a colonial historian known as James Prinsep. A colonial historian known as James Prinsep who in turn deciphered this particular inscription. Okay, this particular script, that is Brahmi script. And once the Brahmi script was deciphered, we were able to access the contents of Ashokan inscription. Now, in that, students, we have an inscription of Ashoka which is known as the 12th Major Rock Edict. And in that Major Rock Edict, you will find exactly line by line the points that are given in the question. तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे हर इंस्क्रिप्शन और उसके कंटेंट को कैसे याद रखेंगे भाई। रादर आपको राजा की पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इस तरह की बात बोल कौन सकता है। कृष्णदेव राय की बात करें, कृष्णदेव राय तो आपके मिडिवल इंडिया के रूलर है, मिडिवल इंडिया के रूलर है, विजयनगर डायनेस्टी के रूलर है। यहाँ तक आते आते तो हम देखते हैं कि इंडिया में से बुद्धिज्म तो हट ही चुका था, ठीक है। उसके अलावा कृष्णदेव राय खुद एक ब्राह्मण थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्णदेव राय इस तरह की बात कर नहीं सकते। Apart from that, students, when we talk about Samudragupta was one person who was although he was patronizing different religions, but he himself was part of the Brahmanical culture. तो यहाँ पे आप कट कर करके देख सकते हैं कि यार इस तरह की बात बोल कौन सकता है। And hence, students, here our final answer is going to be option A, that is Ashok.
Proceeding further, students, let's come to the next question. It is again from 2020. So many questions coming from ancient India in 2020. Now here, students, we are given names of 3 towns. One is Ghantasala, one is Kadura, and the third one is Chaul. And we are asked that with respect to the Gupta period, ये जो तीनों टाउन हैं, इनका रोल क्या था, ये काम क्या था इन तीनों टाउन्स का? क्या ये पोर्ट थे, क्या ये कैपिटल्स थी, क्या ये पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, एटसेट्रा. Now here, students, if I talk about this particular question, the level of this particular question again is extremely easy. Extremely easy इसलिए है students क्योंकि अगर आप इसको और इसको हटा दें तो चौल जो आपका एक पोर्ट है, ये जो चौल पोर्ट है, ये आपको आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा दोनों के अंदर टाइम एंड अगेन इस पर्टिकुलर साइट का नाम आएगा और बार बार ये नाम आएगा कि चौल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था, चौल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था. तो अगर आप अपनी एनसीईआरटीज ठीक से पढ़ रहे हैं तो एक भी अगर आपको पता है तो बाकी दोनों भी सेम ही होने वाले हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको सोर्स डिफाइन करके बताया स्टूडेंट्स कि चौल जो नाम है ये आपको सतीश चंद्रा के शुरुआत के चैप्टर्स में मिलेगा और आर.एस. शर्मा के एंड के चैप्टर्स में मिलेगा. दैट चौल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, नॉट ओनली फॉर द गुप्ता स्टूडेंट्स, इवन फॉर द लेटर डायनेस्टीज. कीपिंग दिस इन माइंड स्टूडेंट्स, पहले इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. नाउ हियर स्टूडेंट्स, we see that we were trading with the Roman Empire in the ancient period. We all know that. Apart from that students, ट्रेड करने के लिए हमारे को पोर्ट तो चाहिए. तो यहाँ पे रोमन एम्पायर से जब हम ट्रेड कर रहे थे तो कुछ जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट थे उसके अंदर था एक तो कल्याण, एक था चौल, एक था ब्रोच और एक था कैम्बे, और ये सारे के सारे वेस्टर्न इंडिया के अंदर थे. रोमन एम्पायर से हम ट्रेड जो कर रहे हैं वो हम पोस्ट मौर्यन पीरियड से कर रहे हैं और गुप्ता पीरियड के टाइम पे भी हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड चल रही है. उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो चौल है ये गुप्ता पीरियड तक आते आते काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर भी चौल एक इंपॉर्टेंट पोर्ट रहने वाला है. बचे हुए जो दो नाम हमें दिए हुए हैं कदुरा और घंटासला, ये जो दोनों पोर्ट हैं ये आपको साउथ इंडिया के अंदर मिलेंगे, आंध्रा रीजन के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स, अलोंग विद कावेरीपट्टनम एंड तोंडई. ये जो पोर्ट्स हैं ये पांड्यास के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे. उसके अलावा कावेरीपट्टनम जो है ये चोलास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आर.एस. शर्मा के अंदर मिल जाएगी. किसमें? पब्लिकेशन में नहीं, एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा हुआ है ये सब. ओके. Apart from that students, we have some more important ancient Indian ports such as Arikamedu, Bharuch, we have Sopara, we have Calicut, लोथल, लोथल आपका हरप्पन सिविलाइजेशन का है. मुजीरीज, मुजीरीज आपका चेरास का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था. ठीक है. देन वी हैव पूमपुहार और पुहार पोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टूटिकोरिन. ओके. ये लिस्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे इसलिए प्रोवाइड कराई है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था दैट देयर आर फ्यू टॉपिक्स इन एंशिएंट इंडिया सच एज जैनिज्म, बुद्धिज्म, लॉ बुक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एंशिएंट इंडियन पोर्ट्स. दीज आर सम टॉपिक्स स्टूडेंट्स जिनके अंदर थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं. तो इन पोर्ट्स के नाम आप नोट डाउन कर लेंगे और इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सर्च कर लेंगे. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे पोर्ट का नाम, उसके बाद आप देखेंगे कौन सी सिटी प्लस स्टेट के अंदर ये लोकेटेड है और कौन सी डायनेस्टी के अंदर ये पावर में आए. ये 3 पॉइंट्स भी अगर आपको याद हैं तो बहुत है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. चलिए अब इस इंफॉर्मेशन के साथ में दोबारा अपने सवाल पर आते हैं. द आंसर इज नाउ एक्सट्रीमली इजी. वी नो दैट घंटासला, Kadura and Chaul were important ports that were handling foreign trade, and hence our final answer for this particular question is going to be option A. Again, I would like to repeat, it's a very easy question, not because of Ghantasala and Kadura, but because of Chaul, जिसका नाम आपको आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा में बार बार देखने को मिलेगा. चलिए स्टूडेंट्स इसके साथ आगे बढ़ते हैं. अब हम आ गए हैं 2019 पर और 2019 का पहला सवाल आपके सामने है.
नाउ हियर स्टूडेंट्स वी आर गिवन नेम्स ऑफ 4 साइट्स एंड वी आर आस्क्ड कि इन चारों में से कौन सी साइट है जो कि हड़प्पन साइट नहीं है। इस क्वेश्चन के लेवल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसका लेवल जो है वो मीडियम होगा। मीडियम इसलिए होगा स्टूडेंट्स क्योंकि आर एस शर्मा को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले चैप्टर को, एनसीईआरटी में से नहीं बल्कि पब्लिकेशन में से, अगर आप पब्लिकेशन में से ठीक से आर एस शर्मा की पब्लिकेशन में से ठीक से हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसमें से जो मेजर साइट्स जो कि हड़प्पन साइट्स हैं उनके नाम मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में जो साइट हड़प्पन साइट नहीं है यहाँ पे, उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उसका नाम आपको नॉर्मल किताबों के अंदर नहीं मिलेगा और इसी वजह से मैंने इसको मीडियम लेवल पर रखा है। कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, चलिए एक एक साइट का पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर वापस जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पहली साइट जिसका नाम दिया हुआ है उसका नाम है चानू दारो। चानू दारो तो बहुत ही पॉपुलर है, एनसीईआरटी में भी इसका नाम है स्टूडेंट्स। ये हमारी एक हड़प्पन साइट है जो कि पाकिस्तान में इंडस नदी के ऊपर है। ये बहुत ही पॉपुलर साइट इसलिए थी क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग साइट थी, एक इंडस्ट्रियल साइट थी जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन और बीड मेकिंग हुआ करती थी। तो चानो दारो तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ये तो एक हड़प्पन साइट है तो इसको तो साइड में कर देते हैं। दूसरी साइट जिसका नाम हमें दिया हुआ है दैट इज कोट डिजी। कोट डिजी जो है स्टूडेंट्स ये भी इंडस नदी के तट पर सिंध में लोकेटेड है। इस पर्टिकुलर साइट की अगर हम बात करें तो इसको काफी हिस्टोरियंस अर्ली हड़प्पन साइट मानते हैं। इसको काफी हिस्टोरियंस अर्ली हड़प्पन साइट मानते हैं। अर्ली हड़प्पन साइट का मतलब क्या हुआ? बेसिकली स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसके टाइम पीरियड को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, अर्ली, मच्योर एंड लेट। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हो रहा है और थोड़ी बहुत क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो रही है। जबकि मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है जो कि हुई आपकी 2600 से 1900 बीसी, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कि आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा, कालीबंगन जैसी साइट्स उभर के आती हैं जो कि प्रॉपर अर्बन साइट्स हैं जहाँ पे आपको सिटीज बनी हुई मिलेंगी। ठीक है। और लेट हड़प्पन कल्चर क्या है? लेट हड़प्पन कल्चर वो है जिसमें कि धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगा। तो मच्योर के अंदर तो अपनी जो साइट्स आपको हमेशा सुनने को मिलती हैं जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, रोपड़, राखीगढ़ी एटसेट्रा, ये सब हो गई आपकी मच्योर हड़प्पन साइट्स। जबकि अर्ली हड़प्पन साइट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आती हैं साइट्स लाइक कोट डिजी एंड अमरी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो तीसरी साइट का नाम हमें दे रखा है वो है देसलपुर। देसलपुर जो है स्टूडेंट्स इसका नाम आपको कम देखने को मिलेगा नॉर्मल किताबों के अंदर, लेकिन आर एस शर्मा की पब्लिकेशन में आपको ये नाम मिल जाएगा। देसलपुर जो है स्टूडेंट्स ये भी एक हड़प्पन साइट थी जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ये एक बड़ी साइट थी जो कि फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? किलेबंदी करना। तो ये हमारी एक फोर्टिफाइड साइट है गुजरात के अंदर और ये भी एक हड़प्पन साइट है। तो नेचुरली स्टूडेंट्स इस डिस्कशन से आंसर तो आ ही गया है हमारे पास में, चानूदारो, कोट डिजी और देसलपुर हड़प्पन साइट्स हैं। तो जो बच गई दैट इज सोहागौड़, दैट इज सोहागौड़। ये जो है ये साइट हमारे लिए नॉन हड़प्पन है, रादर ये जो साइट है ये मौर्यन पीरियड से एसोसिएटेड है। स्टूडेंट सोहागौड़ जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये पर्टिकुलर साइट जो है ये एक मौर्यन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ पे जब एक्सकवेशन हुए तो यहाँ से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली जो कि मौर्यन पीरियड के साथ एसोसिएट की जाती है और इसीलिए ये हमारी हड़प्पन साइट नहीं है। स्टूडेंट्स इस इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी है। अभी मैंने आपको बताया था किसने डिसाइफर करी है, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करी है। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर हम देखते हैं कि हमें बताया गया है कि ग्रेन्स को केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डायरेक्टिव हो सकता है कि किसी मौर्यन रूलर ने दिया हो और इसलिए दिया हो कि मे बी उस टाइम पीरियड में कोई फैमीन चल रहा था।
अल्टीमेटली इस इंस्क्रिप्शन से हमारे को उस टाइम पीरियड के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। तो ये तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। मुद्दे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चानुदारो, कोटडिजी और देसलपुर ये तो हड़प्पन साइट्स हैं, लेकिन सोहागौड़ जो है वो एक मौर्यन साइट है, एंड हेंस आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आपको हड़प्पन साइट्स पता है तो आपको पता चल जाएगा कि सोहागौड़ नाम की तो कोई हड़प्पन साइट नहीं थी, और अगर हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन से पढ़ें, अगर आपको ये पता है कि सोहागौड़ मौर्यन साइट है तो बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। Keeping this in mind, students, let's proceed further to the next question of 2019. Now, this question, students, is pertaining to Buddhism, but unlike the general questions of Buddhism, this particular question, the level of this particular question is extremely easy. ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा आपकी आर एस शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे सीधा सीधा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन 3 पॉइंट्स में से पूछा गया है कि इनमें से कौन से महायान बुद्धिज्म के फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो आगे जाके 2 स्कूल में टूट गया, हिनायान और महायान। महायान स्कूल जो है वो लगभग 1st सेंचुरी एडी के अंदर पॉपुलर हो गया था। महायान स्कूल के फीचर्स का डिस्कशन कर लेते हैं और फिर वापस आके हम देखेंगे कि भाई कौन से पॉइंट सही हैं या गलत हैं। महायान स्कूल की बात करें स्टूडेंट्स तो ऐसा माना जाता है दैट इट वाज स्टार्टेड बाय नागार्जुन विद इट्स प्राइम सेंटर इन आंध्र प्रदेश। इस पर्टिकुलर स्कूल को महासांघिक स्कूल, जो कि महायान स्कूल से पहले बुद्धिज्म का एक टूटा हुआ स्कूल था, उससे बहुत क्लोज कंसिडर किया जाता है। महायान स्कूल की जो सबसे बड़ी खासियत है स्टूडेंट्स वो ये है कि इन्होंने बुद्धा को भगवान की इनकारनेशन मानना शुरू कर दिया और इसी के तहत वो इनकी मूर्ति पूजा करने लग गए। यही एक कारण था जिसकी वजह से हिनायान इनसे अलग हो गए, क्योंकि हिनायान के अकॉर्डिंग बुद्धा जो है वो एक ग्रेट बीइंग है, एक महान इंसान है, लेकिन भगवान नहीं है, और मूर्ति पूजा जो है उसके अगेंस्ट तो खुद बुद्धा भी थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे महायान स्कूल एकदम अलग डायरेक्शन में चला गया है, बुद्धा को भगवान मानने लगा है और उसी के साथ साथ उनकी मूर्ति पूजा करने लग गया है। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बोधिसत्वा कौन होते हैं स्टूडेंट्स? बोधिसत्वा एक एनलाइटेंड बीइंग होता है। ये एक एनलाइटेंड बीइंग होता है जो कि अपने सैल्वेशन के पाथ को रोक देता है एक बार के लिए, जिससे कि अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके सैल्वेशन अचीव करने में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बोधिसत्वा है उसको एक बड़ा एनलाइटेंड बीइंग माना जाता है। ये हिनायान के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है, क्योंकि हिनायान के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं अरहत। अरहत वो इंसान होता है जो दूसरों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने एनलाइटनमेंट पे ध्यान देता है, जबकि बोधिसत्वा वैसा एनलाइटेंड इंसान होता है जो अपने लिबरेशन को छोड़ के पहले दूसरों की मदद करता है, और ये कॉन्सेप्ट महायान का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, महायान स्कूल की आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये रीबर्थ और सोल के ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव करते हैं, और ये 2 ऐसे सवाल हैं जिन पे बुद्धा ने खुद साइलेंस रखी, खुद वो कुछ नहीं बोले, लेकिन महायान स्कूल के जो फॉलोअर्स थे वो रीबर्थ में बिलीव करने लग गए। महायान स्कूल की बात करें स्टूडेंट्स तो पीछे के क्वेश्चंस में भी हमने इसका डिस्कशन किया है। आगे जाके इसका विभाजन होता है 2 स्कूल्स में, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को हम मध्यमक भी बोलते हैं और विज्ञानवाद को हम योगचार भी बोलते हैं।
इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स महायान स्कूल की एक ऑफशूट आपको अर्ली मिडिवल पीरियड यानी कि 7वीं से 8वीं सेंचुरी एडी में भी देखने को मिलेगी, जिसे मंत्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बोलने लगे। और इसमें एक पर्टिकुलर बोधिसत्वा है हमारे पास में जिनका नाम है अवलोकितेश्वर, उनकी पूजा करी जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं महायान के हमने सारे फीचर्स देख लिए। इनको समझने के बाद अब हम अपने सवाल पे दोबारा आते हैं। पहला पॉइंट कहता है डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा की मूर्ति बनाना, बुद्धा की आइडल बनाना। अभी के अभी मैंने आपको बताया बुद्धा खुद मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन महायान के जो फॉलोअर्स हैं वो बुद्धा को भगवान की तरह पूजने लगते हैं और उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं, और इसीलिए ये महायान का एक करेक्ट फीचर है। सेकेंड पॉइंट कहता है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास। ट्रेडिंग का मतलब सिंपली होता है वॉकिंग। अगर कोई ऐसा शब्द आपके पास आ जाए तो उसको हिंदी में पढ़ लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि लिखा क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास यानी कि वॉकिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, ये भी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का एक मेजर फीचर है, क्योंकि हम देखते हैं कि बोधिसत्वा एक वो इंसान है जो अपनी लिबरेशन को छोड़ के दूसरों को मदद करते हैं अपने रास्ते पे चलने में, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर फीचर इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा पॉइंट बोलता है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। भाई अगर हम किसी भी चीज की मूर्ति बना देंगे तो उस मूर्ति की पूजा करेंगे तो उन्हें रिचुअल्स ही कहा जाता है। मान लीजिए शिवलिंग है, तो शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए उस पर जल या दूध चढ़ाया जाता है, तो उसको रिचुअल ही माना जाता है। उसी तरह से अगर हमने बुद्धा की मूर्तियां ही बनानी शुरू कर दी, उनकी इमेजरी बनानी शुरू कर दी है, तो हम उनके रिचुअल्स भी करना शुरू कर देते हैं। Keeping that in mind, students, this third point is also a feature of Mahayana Buddhism, and hence all three of them are correct, and therefore our answer will be option D. तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों के तीनों फीचर्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसमें से अगर आप सेक्ट वाला पार्ट हटा दें तो बचा हुआ पूरा पार्ट आपके एनसीईआरटी से है, जैसा कि मैंने आपको बताया आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी। वहां पे आपका जो जैनिज्म बुद्धिज्म का चैप्टर है उसके आगे जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आते हैं वहां पे आपको महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। Let's proceed further to the next and the last question, students. It is from 2018. 2018 में एंशिएंट इंडिया से हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन ये जैनिज्म और बुद्धिज्म से है। इस पूरे डिस्कशन में आपने देखा होगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के काफी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी आते हैं, और यूं अगर आप अलग से इनकी हिस्ट्री देखें तो भी हमारे पास जैनिज्म बुद्धिज्म के काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक की इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है। चलिए स्टूडेंट्स अपने लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हमें 4 बोधिसत्वास के नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बोधिसत्वा है जिसके लिए कहा जाता है दैट ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर बुद्धा, जो अभी तक आए नहीं है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हर रिलीजन के अंदर एक अवतार प्रॉमिस किया गया है कलयुग में। जो अभी हमारा करंट एज चल रहा है कलयुग, उसमें हर रिलीजन में एक अवतार को प्रॉमिस किया गया है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो कल की अवतार है, उसी तरह से बुद्धिज्म के अंदर हम देखते हैं कि एक अवतार बुद्धा का प्रॉमिस किया गया है जिसे हम फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि भाई इन चारों में से वो कौन सा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लेवल की बात कर लेते हैं। पहले लेवल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ना तो ये कहीं करंट अफेयर्स में आया था, ठीक है, ना ही उसके अलावा आपको कोई भी रूटीन बुक में इतनी डेप्थ में जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जिन बच्चों ने इसको छोड़ दिया था एग्जाम्स में उन्होंने सही किया था, लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस से हमें आज के टाइम पे ये पता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा बहुत बोधिसत्वास के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टूडेंट्स बोधिसत्वा कौन होता है। बोधिसत्वा एक एनलाइटेंड बीइंग होता है जो कि अपने सैल्वेशन को डिले करके पहले दूसरों की मदद करता है कि भाई इनको भी बताया जाए कि एनलाइटनमेंट कैसे मिलेगा। इसी के साथ साथ बोधिसत्वास के लिए ये माना जाता है कि हर बोधिसत्वा अपनी किसी ना किसी जिंदगी के अंदर बुद्धा बनेंगे।
यानी कि क्योंकि वो एनलाइटेंड हो चुके हैं तो वो अपनी किसी ना किसी एक लाइफ फॉर्म में बुद्धा बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास काफी सारे बोधिसत्वास के नाम हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 का डिस्कशन करेंगे जो कि क्वेश्चन से रेलेवेंट है। इसमें पहले है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का हम ऑलरेडी नाम ले चुके हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर एक मंत्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इंडिया में पॉपुलर होता है, जिसमें कि अवलोकितेश्वर की पूजा होने लगती है। ये जो अवलोकितेश्वर है स्टूडेंट्स, ये बुद्धा के कंपैशन को पर्सोनिफाई करते हैं। बेसिकली हमारे पास मेजरली 6-7 बोधिसत्वास हैं और हर बोधिसत्वा बुद्धा के किसी एक पर्सनैलिटी ट्रेट को पर्सोनिफाई करता है। तो यहाँ पे अवलोकितेश्वर की अगर हम बात करें तो वो बुद्धा के कंपैशन को पर्सोनिफाई करते हैं। Apart from that, students, you will see that this particular bodhisattva is universally acknowledged bodhisattva in Mahayana Buddhism. यानी कि इंडिया के बाहर भी जहां जहां बुद्धिज्म पॉपुलर है, हर जगह अवलोकितेश्वर की पूजा होती है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएटेड हैं, लेकिन इनकी अपीयरेंस आपको थेरावाड बुद्धिज्म में भी देखने को मिलेगी। थेरावाड बुद्धिज्म के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनको पद्मापनी लोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनको पद्मापनी लोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और ये किसका पार्ट है? थेरावाड बुद्धिज्म का। अवलोकितेश्वर के अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा हैं हमारे पास में, उनका नाम है मैत्री। मैत्री के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनको अजीत बोधिसत्वा भी बोला जाता है और ये बुद्धा की एक्टिविटी को पर्सोनिफाई करते हैं। इनकी स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो इनको महायान और थेरावाड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, थेरावाड फॉर्म और महायान दोनों के अंदर पूजा जाता है और यही वो बोधिसत्वा हैं जिनके लिए कहा जाता है दैट ही इज गोइंग टू बी दी फ्यूचर बुद्धा। इंफॉर्मेशन से आंसर तो हमारे पास इजीली आ गया है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप अवलोकितेश्वर के बारे में ठीक से जानते हैं तो आप बड़ी इजीली ये देख पाएंगे कि ये और ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि अवलोकितेश्वर को ही थेरावाड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर पद्मापनी लोकेश्वर बोला जाता था। इन एनी केस स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है दैट फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय को कहा जाता है एंड हेंस आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। लेवल के लिए स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन। अनटिल अनलेस यू नो द आंसर, इट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन। या तो आता है या तो नहीं आता है। अगर नहीं आता है और इस तरह का सवाल पेपर में आ जाए तो छोड़ देना है। फाइनल टचअप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंशियंट इंडियन पोर्ट्स, फॉरेन ट्रैवलर्स, उसके अलावा आपके लॉ बुक्स, उसके अलावा टॉपिक्स लाइक स्लेवरी, स्लेवरी भी आपके लॉ के अंदर ही आ जाएगा टेक्निकली। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं चाहूंगी कि आप एक्स्ट्रा में नोट्स बनाकर रख लें, क्योंकि इनमें अगर सवाल आता है तो थोड़ा सा इन डेप्थ आता है। So with this students, our discussion is complete. I hope you were able to understand all the questions thoroughly. Students, if you like the video, please subscribe to our channel and don't forget to press the bell button. Thank you so much for joining me today.